Good evening, students. I hope all of you are doing well. I'm sorry for getting back to you so late with this piece, but finally it is here. So let's start with it. Now, the topic I'm starting with Unit 4, and as discussed with you guys earlier, I will be covering unipolar depression. Bipolar depression will be covered by Divya ma'am, and basically in this particular unit we will be covering the following subtopics. So for instance, we will cover mood disorder, we will cover the symptoms and the clinical picture, we will cover diagnosis, etiology, treatment, prevalence, as you can see here. And we'll another very important point that we will cover is what kind of depression is not considered as mood disorder. So because depression is kind of classified under mood disorder, just like how your OCD, panic disorder, phobia, it's under a bigger umbrella, a bigger classification of anxiety disorder. ठीक है. सिमिलरली आपका डिप्रेशन मूड डिसऑर्डर का एक टाइप है. एंड basically in this particular unit, in this whole particular unit, we will be covering clinical picture. Now what is clinical picture is basically there are two aspects to clinical picture. उसमें हमें पता चलता है कि क्या क्या साइंस होते हैं एक पेशेंट के एंड क्या क्या सिम्टम्स होते हैं. नाउ हाउ आर दीज टू डिफरेंट? So signs are normally like you can objectively see it. ठीक है. That means someone else is going to, for example, if I have depression, then whatever observations that my parents are making of me कि मेरा कैसा behavior change हो रहा है, वो will be a sign, and symptom will be जो मैं subjectively feel कर रही हूँ, जो मैं internally महसूस कर रही हूँ, that is called as symptom, right? So these two are covered normally in your clinical picture. And a very easy example to explain sign and symptom क्या होता है, how the different is. Basically जब for example एक patient आता है, वो बोलता है कि मुझे गर्म लग रहा है, that is a symptom. लेकिन साइन ये होगा, फॉर इंस्टेंस डॉक्टर और अ रिलेटिव वो पेशेंट के सर पे हाथ रखे और उससे फील हुआ है कि टेम्परेचर थोड़ा हाई है, या वो जब थर्मोमीटर से टेम्परेचर नाप ले एंड देन उसको पता चलता है कि टेम्परेचर इज़ हाई, तो दैट इज़ कॉल्ड एज योर साइन. ठीक है. सो जो दूसरे ऑब्जर्व कर पाते हैं वो साइन होता है, और जो मैं सब्जेक्टिवली फील कर रही हूँ, जो पेशेंट इंडिविजुअल सब्जेक्टिवली फील करता है, वो होता है सिम्टम. तो क्लिनिकल पिक्चर में ये दोनों चीज़ें आती हैं. हम लोग सिम्टम्स के बारे में भी बात करेंगे. डायग्नोसिस बेसिकली ये है कि डायग्नोसिस में बेसिकली इट्स काइंड ऑफ अ क्लासिफिकेशन सिस्टम. जैसे हम लोगों ने ICD जब हम लोग बात करें तो हमने डिस्कस किया था, तो उसमें हमने क्या बोला था कि WHO और APA दे हैव काइंड ऑफ come up with certain symptoms, or certain they have given importance to certain symptoms, and they अगर ये symptoms आते हैं तो on the basis of that symptoms वो diagnosis करते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ kind of confirm that this individual is having this disorder versus something else. Sorry about that. So yeah, that is called as diagnosis. So आप देखोगे diagnosis and clinical picture में थोड़ा बहुत overlap रहेगा. All right. And diagnosis में ही आपके symptoms वगैरह भी आते हैं. Then we'll talk about the causal factors, basically the different reasons why depression why one person tends to have some kind of vulnerability or they have depression. कुछ reasons होंगे, वो हम etiology भी बोलते हैं इस चीज़ को. And then we will discuss about treatment and prevalence and prognosis. Prevalence क्या है कि basically prevalence is कि ये particular disorder कितना prevalent है या कितना पाया जाता है in a particular society or in a particular population. ठीक है. And prognosis is basically कि ये जो disorder है या ये डिसीज़ है, ये कैसे आगे जाके डेवलप करेगा, मतलब कितना और टाइम लगेगा,
इसको हील होने में या इसको कम्प्लीटली जाने में. एंड समटाइम्स लाइक एज वी विल डिस्कस, आपके बुक में प्रोग्नोसिस हैज़ बीन डिस्कस्ड एज विद रिस्पेक्ट टू एज कि अच्छा कौन से एज में नॉर्मली डेवलप होता है और ये कब तक कितने टाइम तक जाता है. इट्स बीन वेरी ब्रीफली डिस्कस, सो वी विल डू इट वेरी ब्रीफली. एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट एक्सक्लूजन्स कि क्या टाइप ऑफ डिप्रेशन इज़ नॉट कंसिडर्ड एज मूड डिसऑर्डर. राइट, जैसे हमने बोला कि मोस्टली डिप्रेशन इज़ क्लासिफाइड एज मूड डिसऑर्डर, बट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप का डिप्रेशन हम उसको मूड डिसऑर्डर मानते ही नहीं है, तो उसको हम डायग्नोसिस नहीं करते हैं फॉर सर्टन टाइम. राइट. Okay, now let's dive into the main thing. So basically, depression falls under mood disorder, or also called as affective disorder. As you can see, थ्रूआउट द होल द प्रेजेंटेशन कहीं पे डीएनई लिखा है, तो आप वो वाला पर्टिकुलर फ्रेज आपको मतलब या वो पर्टिकुलर पॉइंट आपको ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम में इंक्लूड करने में वाइल राइटिंग. आई एम जस्ट मेंशनिंग दोज पॉइंट्स बिकॉज आपको ईजिली समझ में आ जाए. तो मूड इज़ बेसिकली योर करंट स्टेट ऑफ इमोशनल बीइंग, एज यू कैन सी हियर. एंड मूड डिसऑर्डर ये होगा कि कभी भी कोई सिग्निफिकेंट चेंज होता है या कोई डिस्टर्बेंस होती है एक इंडिविजुअल के मूड में. एंड वो अगर डिस्टर्बेंस, जैसे हम लोगों ने 4Ds वगैरह पढ़ा था फर्स्ट यूनिट में, अगर वो बहुत ही परसिस्टेंट हो, मैल अडेप्टिव हो, और वो इंटेंस हो, या तो द डिग्री ऑफ चेंज और द डिग्री ऑफ सिम्टम्स बहुत ही इंटेंस होंगे. परसिस्टेंट मतलब काफ़ी टाइम तक चल रहा है, और मैल अडेप्टिव दैट मीन्स इट्स अफेक्टिंग योर लाइफ एंड द डिफरेंट स्फेयर्स ऑफ योर लाइफ. फॉर एग्जांपल सोशल, इमोशनल, और ऑक्यूपेशनल, प्रोफेशनल लाइफ, ये सब किस एक्सटेंट तक ये अफेक्ट करता है, तब हम उसके बेसिस में हम बोलते हैं कि मूड डिसऑर्डर है. एंड मूड डिसऑर्डर में एक्चुअली there are two kind of any kind of extreme emotion will be considered. If an individual is experiencing any kind of extreme emotion, तो हम उसको mood disorder मानते हैं, and also on the basis of certain criteria. Right. So अगर एक्सट्रीम सैडनेस है तो भी हम उसको मूड डिसऑर्डर कंसिडर करेंगे. और अगर बहुत ज़्यादा एलेशन, मतलब बहुत एक्सट्रीम हैप्पीनेस है, लाइक अनरीजनेबल हैप्पीनेस है, तो तब भी हम उसको मूड डिसऑर्डर कंसिडर करेंगे. और अगर ये दोनों हैं, एक्सट्रीम सैडनेस और एक्सट्रीम एलेशन या एक्सट्रीम हैप्पीनेस है, तो भी हम उसको मूड डिसऑर्डर कंसिडर करेंगे. और ये जो बोथ वाला कंडीशन है, इसको हम बोलते हैं बाइपोलर depression. So now I have just explained to you कि जो एक्सट्रीम सैडनेस उसको हम डिप्रेशन बोलते हैं, और एक्सट्रीम हैप्पीनेस उसको हम मेनिया बोलते हैं. तो इमेजिन दिस, लाइक आपके बुक्स में भी ये दिया गया है, एंड सो आई थॉट दैट इट्स इम्पॉर्टेंट टू एक्सप्लेन यू दिस. सो इमेजिन दैट देयर इज़ अ स्केल. ओके, आई कैन नॉट ड्रॉ इट हियर, बट आई एम जस्ट इमेजिन करिए ये एक स्केल है ना. और इस स्केल में बीच में 5 है, और इस एंड में 0 है, और इस एंड में 10 है ना. तो बेसिकली आपके मूड्स इस 0 to 10 के रेंज में जाते हैं. तो आपका ये जो मेनिया है वो 10 होगा, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एंड आपका डिप्रेशन वो 0 होगा, दैट इज़ एक्सट्रीम सैडनेस. सो बेसिकली मेनिया एंड डिप्रेशन आर बेसिकली टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ दिस होल कॉन्टिन्यूम. ये जो स्केल है, ये कॉन्टिन्यूम, ये एक कंटिन्यूड वेरिएशन है ऑफ मूड. एंड जो बीच में जो 5 है वो आपका नॉर्मल मूड होता है. राइट. तो अगर हम 5 से थोड़ा सा इधर 4 में आ जाता है, तो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि अच्छा थोड़ा सा सैडनेस है. राइट, एज़ कम्पेयर टू 5 अगर हम बोले तो. और अगर 3 बोले तो और ज़्यादा सैडनेस है. राइट. सिमिलरली अगर हम 6 बोलें तो फिर दैट मीन्स थोड़ा एक मोर देन नॉर्मल हैप्पीनेस है. राइट. एंड देन फिर अगर हम 9 चल जाए तो मतलब एक और ज़्यादा हैप्पीनेस है. राइट. सो here, as you can see that there are two key moods that are involved in mood disorder. यहाँ पे मैंने आपको anyways explain कर दिया, so we can go further. Now your differentiation of mood disorder can be done on various basis. तो एक तो हम differentiation ये बोल सकते हैं कि कौन सा mood है या किस टाइप का मूड है, उसके बेसिस में हम कर सकते हैं. दूसरा है कि क्या कितना
है या कितने टाइम से चल रहा है ये ड्यूरेशन, उसके बेसिस पे भी हम मूड डिसऑर्डर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सिवियर का मतलब है कि कितने टाइप ऑफ इम्पेयरमेंट या फिर डिसफंक्शन है। जैसे कि मैंने आप लोग को अभी बताया था कि अच्छा इमोशनली भी आपको अफेक्ट कर सकता है, सोशली इंटरपर्सनल वे में भी अफेक्ट कर सकता है वाइल इंटरेक्टिंग विद फ्रेंड्स, या फिर अपने प्रोफेशन पढ़ाई में भी अफेक्ट कर सकता है, अपना सेल्फ वर्थ में भी अफेक्ट कर सकता है। सो दीज आर ऑल द डिफरेंट एरियाज of dysfunction या number of dysfunction area and also the degree, है ना। एंड ड्यूरेशन इज़ बेसिकली आपका कि कितने टाइम तक चल रहा है। इसमें हम नॉर्मली कंसिडर करते हैं एक्यूट, क्रॉनिक और इंटरमिटेंट। एक्यूट में ये होता है कि आपका बहुत ही इंटेंस, लाइक फॉर एग्जांपल बहुत ही इंटेंस सैडनेस होगा, एकदम सडनली यू विल फील इट, सडनली आता है, इसका ऑनसेट होता है। ऑनसेट मतलब एकदम सडन, ऑनसेट मतलब बिगिनिंग, एकदम सडनली आएगा एंड बहुत कम टाइम के लिए आएगा, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। शॉर्ट ड्यूरेशन के होगा लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी वो फीलिंग। क्रॉनिक होता है कि फॉर एग्जाम्पल इट विल ग्रेजुअली डेवलप, बहुत धीरे धीरे डेवलप होता है और बहुत ही लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक्सटेंड होता है। फॉर एग्जांपल एन ईयर, है ना, एक साल के लिए जैसे डिप्रेशन हो गया है या डिप्रेस्ड इंसान महसूस कर रहा है। इंटरमिटेंट होता है कि देर इज़ अ पीरियड ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग एंड देन देर इज़ अ पीरियड ऑफ एपिसोड ऑफ डिसऑर्डर्स। तो वो क्या होता है कि बीच में आता है डिप्रेसिव एपिसोड आता है, फिर नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, फिर आता है, फिर नॉर्मल फंक्शनिंग होती है। सो इट इज़ इंटरमिटेंट, आता जाता है टाइप्स, है ना। तो दैट इज़ योर ड्यूरेशन के बारे में ये हमें बताता है। अब जैसे मैंने आप लोग को बोला था कि मैंने आप लोग को बताया था कि बाइपोलर डिसऑर्डर, पहले बताया था कि इट्स बेसिकली इसमें मिक्स्ड एपिसोड्स होते हैं। इसमें आपका मूड एकदम ऑल्टरनेटिव, एकदम सडनली सडनली ऑल्टरनेट होता है, चेंज होता है बिटवीन सैडनेस, यूफोरिया एंड समटाइम्स इवन इरिटेबिलिटी इन दैट, एंड ऑल ऑफ दीज फीलिंग्स यू विल experience in one episode, the person will experience in one episode. यूनिपोलर में होता है कि सिर्फ एक ही साइड, दैट मीन्स मैंने आप लोग को जो बताया था ना कि जो कॉन्टिन्यूम है वो 0 to 10 वाला, उसमें जो एक्सट्रीम इमोशन होता है वो सिर्फ एक ही साइड ऑफ द स्केल में होता है। या तो फिर एक्सट्रीम सैडनेस होगा या एक्सट्रीम हैप्पीनेस, जो कि मैनिक एपिसोड्स जिसको हम बोलते हैं वो होगा। बाइपोलर में ये दोनों के बीच में हम शिफ्ट होता है ना, द इंडिविजुअल शिफ्ट्स। एंड दिस सो ऑफन इट इज़ सेड कि आपका जो सुइसाइड वो सिर्फ डिप्रेस्ड, जब इंसान सैड होता है तभी वो एक्सपीरियंस करता है इन डिप्रेशन। बट ऐसा नहीं है, द पर्सन कैन इवन एक्सपीरियंस दैट इन extreme happiness also, because sometimes what will happen is that the individual is not able to understand कि इतनी ज़्यादा happiness क्यों हो रही है, and nobody around them will be able to understand, they will be irritable. So इसके वजह से suicide is also frequent in manic episodes, not only just in depressive episodes. Then bipolar में तो है ही है, and you can say why it is so, because दोनों में दोनों emotions, extreme emotions के बीच में switching होता है, which can be very disturbing for the individual, right? So with this basically we've covered under what category depression comes into. Now we will get into the other half. So बेसिकली द क्लिनिकल पिक्चर। नाउ आपके बुक में ये दिया हुआ है, मैं इसको बहुत ब्रीफली करने वाली हूँ स्लाइड को। तो जो यूनिपोलर डिसऑर्डर्स या एनी काइंड ऑफ मूड डिसऑर्डर्स नॉर्मली एक्सिस 1 में आता है इन DSM-4 TR। आप लोग को DSM, क्योंकि आप लोग को DSM-4 TR ही पढ़ना है तो उसी को हम लोग रेफ़र करेंगे फॉर एग्जामिनेशन पर्पज़, फॉर आंसर राइटिंग, तो इसीलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। अब एक्सिस 1 क्या है, बेसिकली इमेजिन करिए कि DSM-4 TR का एक कंटेंट टेबल है, टेबल ऑफ कंटेंट्स है ना। जैसे हम बुक खोलते हैं वैसे ही कोई भी बुक खोलेंगे तो कंटेंट्स आता है, वैसे ही DSM-4 का आता है। अब उस कंटेंट्स में इट हैज़ बेसिकली सेट कि अच्छा ये वाला चैप्टर 1 में ये
ये डिसऑर्डर्स आएंगे, चैप्टर 2 में ये आएगा, चैप्टर 3 में ये आएगा। और नॉर्मली ये जो क्लासिफिकेशन होता है, ये जो क्लबिंग ऑफ ऑल द डिसऑर्डर्स इनटू वन चैप्टर, ये ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन सिमिलैरिटी, मतलब कोई रीजंस, या तो ऐसा होगा कि उनका कॉज जो होता है इन सारे डिसऑर्डर्स का सेम होगा। फॉर एग्जांपल एंजाइटी एंड mood disorder is clubbed into the same axis. It's an axis one, राइट। सो इट्स बिकॉज दे आर, उनके कॉजेज़ वगैरह काफ़ी बहुत सेम होता है। एंड समटाइम्स इवन लाइक देयर मेडिकेशंस कैन बी प्रिटी ओवरलैपिंग, इफ़ नॉट ऑल ऑफ देम विल नॉट बी सेम, लेकिन कुछ कुछ ओवरलैपिंग होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कैसे सिम्टम्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्या कॉज है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे हम उसको इंटरवेंशन कैसे दे सकते हैं, उसके बेसिस में नॉर्मली क्लब किया जाता है एक साथ। तो एक्सेस 1 मान लीजिए एक वैसा ही एक चैप्टर है ना, एंड वहाँ पे बेसिकली आपका मूड डिसऑर्डर्स, दैट मीन्स इवन योर मेनिया, योर डिप्रेशन, डिप्रेसिव एपिसोड्स, योर बाइपोलर, ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू कम इन एक्सेस 1, ठीक है। नाउ इन मेनिया बेसिकली, जिसमें आपको बताया कि उसमें एक्सट्रीम एलेशन, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, एक्सट्रीम यूफोरिया, एंड this will be very very intense in nature, and a lot of times it will be it will have like some episodes of irritability and even violence at times, if it can be, if the individual gets feels these emotions in an extreme manner, then especially this happens जब दूसरा इंसान is not like it's he or she is refusing to go along with the wishes of the individual or the patient. That means उसके हिसाब से अगर नहीं काम करेंगे तो स्पेशली तब ये होता है। अब ये तो ओवरऑल मैं क्लिनिकल पिक्चर कवर कर रही हूँ, इसलिए ओवरऑल मैं ब्रीफ दे रही हूँ। एंड देन इसके साथ 3-4 और कॉग्निटिव, मेंटल और रिलेटेड मेंटल, जिसमें दैट मीन्स द वे यूर थिंकिंग, द वे यूर एक्सपीरियंसिंग योर इमोशंस, वो वाले सिम्टम्स आते हैं। देन बिहेवियरल एंड फिजिकल, एंड इसमें ड्यूरेशन होता है मेनिया को, कभी भी मेनिया को क्लासीफाई करने के लिए या डायग्नोस करने के लिए 1 वीक तक ऑन मोस्ट ऑफ द डेज एंड मोस्ट ऑफ द टाइम पर्सन को ये सारे सिम्टम्स महसूस करना चाहिए, तब जाके ही हम उसको मेनिया या मैनिक एपिसोड डायग्नोस करते हैं। डिप्रेशन में जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया था कि मार्केडली एक्सट्रीम डिप्रेस्ड मूड होगा। डिप्रेस्ड मूड नहीं तो दे विल द इंडिविजुअल विल लूज इंटरेस्ट इन अ लॉट ऑफ थिंग्स that were pleasurable, that were initially they really enjoyed doing. For example, a person would not be interested in listening to music, would not be interested in meeting friends, क्या। and ये individual, same individual पहले before the depressive episode, they used to listen to music every day, they would talk to their friends, make initiative every day. So because of the depressive episodes or because of the symptoms, this is how it affects them, that they lose interest in the things that they were earlier very interested in and they found pleasure in. and इसके साथ 3-4 और cognitive symptoms होते हैं, आपके behavioral symptoms होते हैं, and then ये duration is basically 2 weeks. So you see the difference between the two here. There's a huge difference in terms of duration. Of course symptoms may be different, so we will cover in the next slide. Now in depressive, now we are talking about diagnosis. अभी clinical कभी पिक्चर लिखेंगे तो आप you can kind of talk about all these things in the same way. आप क्लिनिकल पिक्चर में एक बात ये लिख सकते हैं कि a lot of times जो मैंने ये यहाँ पे सेकंड पॉइंट में मेंशन किया है कि there is a high comorbidity between मूड डिसऑर्डर्स एंड एंजाइटी डिसऑर्डर्स। का मतलब ये कोमॉर्बिडिटी का मतलब है कि दो जो इंडिपेंडेंट चीज़ें हैं, 2 इंडिपेंडेंट डिसीजेस, इट्स अ मेडिकल टर्म, ये 2 इंडिपेंडेंट जो डिसीजेस हैं वो एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। सो दे आर समवॉट इंटर रिलेटेड, सो देयर इज़ अ को अकरेंस ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी एंड इट्स नॉर्मली सीन कि जिन लोगों को डिप्रेशन होता है they will have some tendency of some anxious tendencies, they will have some sort of mild anxiety disorder type होगा, या mild anxiety symptoms होंगे, लेकिन होंगे ज़रूर. So this you can discuss it in clinical picture, and
डायग्नोसिस में क्या है कि आपका ऑल द सिम्टम्स जो कॉग्निटिव बिहेवियर एंड फिजिकल सिम्टम्स भी इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने प्रीवियस स्लाइड में वो सब डिस्कस नहीं किया बिकॉज वी विल एनीवेज डिस्कस इट इन डायग्नोसिस. सो अकॉर्डिंग टू DSM-4 है ना, एक्सेस 1 आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है. जब आप लोग डायग्नोसिस के बारे में लिख लोगे, ये एक्सेस 1 आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो कि हाउ DSM क्लासिफाइज मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स. सो अकॉर्डिंग टू DSM-4 as you can see here that at least 5 symptoms होने चाहिए for 2 weeks on. For these 2 weeks that means on most of the days on these 2 weeks. ऐसा नहीं है कि 1 या 2 दिन आया in out of these 14 days. Okay, on most of the days and most of the time होना चाहिए. The individual should be experiencing any of the 5, at least 5 symptoms. 5 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, right? देन व्हाट आर दीज सिम्टम्स. सो इसमें भी क्लासिफिकेशन है. इसमें जैसे कि मैंने पहले बोला था कि एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू, दैट मीन्स एटलीस्ट या तो डिप्रेस्ड मूड होगा या तो फिर लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेजरेबल एक्टिविटीज़, इन प्लेजर ऑन मोस्ट ऑफ द डेज होगा. यहाँ पे ये प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा, आई मेड अ मिस्टेक. सो इन दोनों में से कोई सा एक होगा या दोनों भी हो तो भी मतलब इट्स ओके, बट एटलीस्ट एक होना चाहिए. एंड इन एडिशन टू दिस ऑन द बेसिस ऑफ अगर ये दोनों सिम्टम्स हम देख पा रहे हैं तो देन 3 आउट ऑफ दीज होने चाहिए एटलीस्ट. एंड अगर मान लीजिए सिर्फ यहाँ पे सिर्फ मान लीजिए डिप्रेस्ड मूड ही है ना, तो 4 आउट ऑफ दीज होने चाहिए. दैट मीन्स इन टोटल इन सब इसको मिला के, इस सेट ऑफ सिम्टम्स को मिला के और इस सेट ऑफ सिम्टम्स को मिला के 5 एटलीस्ट होने चाहिए. एंड यहाँ पे क्या बोला है? सो यहाँ पे बोला है कि देर हैज़ टू बी सिग्निफिकेंट वेट लॉस और वेट गेन, राइट. एंड देन देर इज़ लॉस ऑफ स्लीप, या तो फिर ज़्यादा हाइपरसोमनिया मतलब ज़्यादा सोना, इंसोमनिया मतलब कम सोना, है ना. सो ये हो. फिर साइकोमोटर एजिटेशन मतलब देर इज़ टू मच ऑफ लाइक साइकोमोटर एक्टिविटी. ओके. एंड रिटार्डेशन मतलब दे आर टू लाइक साइकोमोटर मतलब फिजिकली दे आर नॉट लाइक दे आर वेरी स्लो, वेरी स्लगिश, धीरे धीरे काम कर रहे हैं, है ना. जो चीज़ आधे घंटे में हो जाना चाहिए दे आर टेकिंग हाफ फुल डे टू जस्ट टू डू दैट, राइट. सो दैट इज़ कॉल्ड एज साइकोमोटर रिटार्डेशन. Then and I'm not talking like just for like some complex things, I'm talking for like much more simpler things here. Then fatigue. So in the sense कि they will feel कि बहुत tired हैं, loss of energy, है ना. And then they will feel a sense of worthlessness कि I am not good enough, I am not मैंने आज का ये assignment नहीं दिया, तो they will feel extremely guilty about it कि how can I do this, how can I miss such a big deadline. So that is sense of worthlessness is there. Then there is I'm sorry about that, there is a diminished ability to think. That means cognitively they're not able to decide or make decisions in their lives. They're not able to concentrate, they're not able to think very easily. And then there is recurrent thoughts of death or suicide. So as you would have seen here, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में किया है ये दोनों आपके, तो होगा कि there are 2 physical symptoms here and then there are 2 behavioral symptoms कि बहुत तेज़ काम कर रहे हैं, आप बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हैं, या बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं, धीरे धीरे हो रहा है, राइट. एंड there are 3 cognitive symptoms here. So COGs means cognitive, 2 behavioral and 2 physical. So if you kind of like club it like this and remember, that means there are 2 physical symptoms, 2 behavioral and 3 cognitive. आप भूलोगे नहीं होपफुली जब आप एग्ज़ाम में लिखोगे. एंड जब आप एग्ज़ाम में लिखोगे, try to write these things as the way it is. Do not try to turn the words and the terminologies too much. Until unless आपको difficult लग रहा है कोई word, तो आप substitute कर सकते हो, उसको easy कर सकते हो. बहुत कोशिश करिए. I would say just write these, because the moment when the examiner sees these points, they are just simply going to give you
मार्क्स. ओके, दे विल नॉट इवन थिंक कि आपका कॉन्सेप्ट सही है कि नहीं है. अगर क्लिनिकल पिक्चर के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो दे विल जस्ट लुक एट दीज पॉइंटर्स एंड दे विल गिव यू मार्क्स. सो दैट्स व्हाई आई सेड कि ये मैथ्स जैसा है. एंड जब आप एग्ज़ाम में लिख रहे होंगे, प्लीज़ PHEPEH COG ये सब मत लिखिएगा, क्योंकि ये मतलब डायग्नोसिस DSM-4 में ऐसे लिखा नहीं है. मैंने आप लोग को जस्ट ईजिली लर्न करवाने के लिए मैंने ये लिखा हुआ है, राइट. एंड देन दी अदर सिम्टम दैट, सो एक तो ये सारे क्राइटेरिया मीट करना चाहिए, 5 सिम्टम्स होने चाहिए इन सब में से फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स. देन अनदर क्राइटेरिया इज़ दैट कि कोई भी क्राइटेरिया शुड नॉट मीट द मिक्स्ड एपिसोड, मिक्स्ड जिसमें बाइपोलर हो रहा होगा, राइट. एंड द लास्ट वन, जो भी सिम्टम्स होंगे दे आर कॉजिंग क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट. दैट मीन्स बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस वो लेके आ रहा है ना, या इज़ काइंड ऑफ अफेक्टिंग द पर्सनस लाइफ वेरी नेगेटिवली, राइट. एंड दिस इज़ ICD एज यू वुड लाइक. आप लोग आराम से देख लेना, ICD में काइंड ऑफ लाइक इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग. देयर इज़ वेरी लिटिल डिफरेंस, एक्सेप्ट कि आप देखोगे कि ICD में इतना स्ट्रिक्ट नहीं है कि 5 होने चाहिए, ये होने चाहिए. दे हैव सेड कि अच्छा इसमें से होने चाहिए, राइट. एंड दे हैव गिवन 2 वीक्स का सेम है, बट ये उन्होंने थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखा हुआ है. तो ये आप नॉर्मली देखोगे अगर आप कभी भी ICD DSM कंपेयर करोगे, ICD हैज़ अ फेयरली फ्लेक्सिबल criteria as compared to DSM. Then the last thing that this slide is kind of talking about is कि एक इंसान जो let's say is kind of having prolonged episodes of depression. Let's say these symptoms are persisting for at least 2 years, हम उसको dysthymia मानते हैं. I'm just telling this to you, you don't have to remember dysthymia का please criteria याद करना मत बैठ जाना, बहुत ज़्यादा complex हो जाएगा आप लोग के लिए. I'm just telling this to you, this for you, just for the sake of knowledge. And and basically the symptoms काफ़ी टाइम तक रहते हैं. That's why persistent है. Okay, now manic episodes. क्ले. सो अकॉर्डिंग टू DSM-4 TR आप देखोगे कि जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि सिम्टम्स लास्ट करते हैं फॉर 1 वीक. सो देयर इज़ अ पीरियड ऑफ अबनॉर्मल परसिस्टेंट एलिवेटेड, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं. एंड देन दे हैव इरिटेबल मूड भी हो सकता है साथ ही साथ. एंड देन इट सेज कि एटलीस्ट 2 or more symptoms होने चाहिए out of the following. So what are they saying? So this DSM says कि inflated self esteem या grandiosity मतलब ये है कि the person thinks that so this is how the person will think. They will say very larger than life things. They will have a very unrealistic sense of self. So they will say कि for instance मैं सबका करता धरता हूँ, है ना, मैं हर एक जगह प्रेजेंट हूँ. या sometimes in worst case scenarios there are people who verbalize things like कि okay I am Christ, या मैं राम हूँ, या मैं second birth हुआ है मेरा, है ना. So or second birth of reincarnation of Ram हूँ. So things like that, right. And then there is decreased need for sleep because they're so hyperactive and so active throughout the day that they don't feel the need for sleeping, right. So this is the physical symptom and this is the cognitive. Then they are very talkative, so like बहुत ज़्यादा than usual बात करेंगे, or they will have some kind of pressure to just keep on talking even if when there is no need. Then there is also flight of ideas they might feel. ठीक है, ये cognitive है. flight of ideas मतलब ये होता है कि the person might their जो ideas, जो उनकी बातें होती है ना, वो एकदम से इधर से उधर शिफ्ट होती है. और जब शिफ्ट भी होती है तो ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है, बहुत ही सुपरफिशियल कनेक्शन होता है, बहुत थोड़ा कम कनेक्शन होता है. एंड इट्स लाइक अ डिस्कनेक्टेड रैम्बलिंग. सो फॉर इंस्टेंस आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. फॉर इंस्टेंस आई विल से आई एम फीलिंग वेरी हंग्री राइट नाउ.
ओ लुक द डॉग इज़ लाइक स्लीपिंग देयर, ऐसे कैसे चलेगा, अरे भाई मुझे तो आज का असाइनमेंट भी ख़त्म करना है, अरे मम्मी पापा ने अरे मम्मी पापा तो पता नहीं यूके यूएस में है. सो बेसिकली देर इज़ नो लिंक बिटवीन ऑल द थिंग्स दैट आई एम सेइंग, राइट. सो दैट्स कॉल्ड फ्लाइट ऑफ आइडियाज़. देन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ दैट थॉट्स आर रेसिंग का मतलब ये है कि द पर्सन विल फील कि उनकी बातें एकदम से इधर से उधर शिफ्ट होती है. आप रेसिंग थॉट्स और फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ में क्या डिफरेंस है? रेसिंग थॉट्स में ये होता है कि बेसिकली द पर्सन फील्स कि वो बहुत जल्दी जल्दी सोच रहे हैं. ओके, द थॉट्स आर एकदम बहुत दे आर रेसिंग, दे आर थिंकिंग वेरी फास्ट. सो हाउ दे वुड टॉक वुड बी समथिंग लाइक ओ आई एम हंग्री टुडे, जल्दी जल्दी खाना होगा अभी, वरना मैं लेट सोऊंगी तो कल फिर सुबह जल्दी लेट उठूंगी. तो दिस ऑल दे विल टॉक in a span of like 1 or 2 seconds. Okay, I mean 1 or 2 minutes, right? So you're seeing there is a relation between the way that they are talking. There is a connection, but the thoughts are shifting very quickly. That's what called as racing thoughts. Distractibility, you can link it with the above symptom, क्योंकि थॉट्स बहुत ही वो है. इंक्रीज गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी. गोल डायरेक्टेड मतलब ये होता है कि देर इज़ अ सेंस ऑफ पर्पस इन वॉट दे आर डूइंग, सो दे विल बी एक्सट्रीमली ड्रिवन. ओके, सो फॉर इंस्टेंस they will be extremely socially active because they have certain sexual intentions and they will have sexual partners. There is a increased physical activity in goal directness, ऐसे पता चलता है. And then excessive involvement in pleasurable activities that can turn out to be very harmful or painful for the individual. And like the previous depressive episode, आपका यहाँ पे there should be no symptom that should be meeting mixed episode का. आपको mixed episode के symptoms याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना आप लिख लेना. And then it similar to the last point is also very similar to the previous one, right? Now going forward, causes. So the causes, just give me a second. The causes of depression. So I am again covering unipolar depression throughout the presentation, just to remind you. So the biological factors. So if you remember, हम लोगों ने different school of thoughts पढ़े थे, है ना. तो अब आप लोग relate कर पाओगे all those things, right? Now biological factors ये बोलता है कि sorry about that, just give me a second. Yeah, so biological factors ये बोलता है कि there are 2-3 factors. एक तो hormones में abnormality, neurochemical imbalance हो जाता है neurotransmitter level पे at the level of brain, and then genetic influences. So it is said that it's been found that depression is kind of linked with a particular gene which is called as serotonin transporter gene. ठीक है, serotonin is one of the neurotransmitters that is produced by the brain, है ना. It's a kind of neurotransmitter, और serotonin is responsible for regulating your mood. ठीक है, आपका मूड को रेगुलेट करने के लिए, उसको बैलेंस रखने के लिए, और काफ़ी बाकी चीज़ों को भी रेगुलेट करने के लिए सेरोटोनिन हेल्पफुल होता है. वो हम लोग एनीवेज डिटेल में आके बात करेंगे, बट इफ़ आई हैव टू एक्सप्लेन यू, इट्स इम्पॉर्टेंट to regulate your mood and to keep your mood at a balanced place, right? And to keep it like it's also called as happy neurotransmitter, right? तो serotonin transporter gene is responsible. It's been found, a lot of researchers have said कि ये वाला जीन जहाँ पे भी प्रेजेंट होगा, है ना, उसका वो वाला फॉर्म जहाँ पे भी प्रेजेंट होगा जो डिप्रेशन इंडिकेट करता है, वहाँ पे there's high likability that the individual will have depression. Okay, for instance, अब यहाँ पे अलील्स एक टर्म है. अलील्स क्या होता है कि बेसिकली क्योंकि ये जेनेटिकली है ना, तो जीन्स हमारे फैमिली में पास ऑन होता है, राइट. और कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे हम डिप्रेशन एज अ कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो या मूड एज अ कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर मूड, ये जो जीन इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, वो उसके वेरिएशंस होते हैं, राइट. सो फॉर एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं हाइट,
जैसे जो जीन हाइट को डिटर्मिन करता है उसके 2-3 वेरिएशंस होंगे. एक वेरिएशन होगा स्मॉल, ओके, एंड एक होगा टॉल वेरिएशन. अब जिसके जीन्स में, जिस इंडिविजुअल के जीन्स में टॉल वाला वेरिएशन आएगा वो हाईली लाइकली होगा कि वो टॉल होगा, और जिसके यहाँ पे स्मॉल वाला आएगा वो हाईली लाइक होगा स्मॉल होगा, और जिसके यहाँ पे मिक्स होगा, एक टॉल होगा एक स्मॉल होगा, तो वहाँ पे भी वहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि जो भी डोमिनेंट होता है वो एक्सप्रेस करेगा. दैट मीन्स जहाँ पे मान लीजिए स्मॉल टॉल दोनों जीन आ गया है मेरे में, तो आई विल हैव a tall kind of height only, but it will be not as tall as the one who has who has both the genes as tall. So for instance यहाँ पे जो SS allele है वो प्रीडिस्पोज करता है एक इंडिविजुअल. प्रीडिस्पोज मतलब कि जहाँ पे SS allele होगा वहाँ पे द पर्सन इज़ हाईली लाइकली टू to be developing depression. So जहाँ पे SS allele जिस इंडिविजुअल के जीन्स में SS allele होगा, they are highly likely to develop depression as compared to someone who do not have SS allele, who probably has LL allele, and that particular individual जो जिसके पास LL allele होगा, अगर वो भी stressful event go through करेगा, वो शायद depression ना go through करे who has SS allele and they may not have gone through a stressful event, right? So ये इससे पता चलता है the most important part. The other part basically is trying to say कि twins, it's been a lot of studies have tried to understand how मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक ट्विन्स के बीच में कोई डिफरेंस होता है क्या अगर उनके में वैसा जीन पाया जाता है. तो इट्स बीन फाउंड दैट जो MDD मतलब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, तो इट्स बीन फाउंड दैट जो लोग का मोनोजाइगोटिक होता है, जो मोनोजाइगोटिक टिंग्स होते हैं, मतलब जो एकदम हम शक्ल होते हैं, वो वाले जो ट्विन्स होते हैं वो ट्विन्स आर लाइकली टू हैव both of them are likely to develop depression as compared to dizygotic जो सेम नहीं दिखते हैं, राइट. तो मोनोजाइगोटिक का क्या होता है कि वो सेम जाइगोट से फॉर्म होते हैं, वो बस डिवाइड हो जाते हैं, राइट. एंड डाइजाइगोटिक में क्या होता है कि एक अलग स्पर्म होता है और एक अलग ओवम या ओव्यूल, वो से एक इंडिविजुअल बनता है और दूसरे स्पर्म और दूसरे ओव्यूल से दूसरा इंडिविजुअल बनता है, राइट. सो दिस इज़ व्हाट इज़ बीन फाउंड. नाउ द नेक्स्ट वन जो न्यूरोकेमिकल फैक्टर्स हैं. नाउ इट हैज़ बीन फाउंड दैट न्यूरोकेमिकल फैक्टर्स में व्हाट हैज़ बीन फाउंड कि जो डिप्रेशन से रिलेटेड जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो 3 हैं, ठीक है, जिसको हम मोनोअमीन क्लास में मानते हैं. अब इसको याद करने के लिए आप याद कर लो मोनोअमीन क्लास में कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं. NSD याद कर लो, नॉर एपिनेफ्राइन, सेरोटोनिन एंड डोपामिन, तीनों के इनिशियल्स आ गए, राइट. एंड इट्स बीन ऑल्सो फाउंड कि जो इंक्रीजिंगली जो हम आगे जाके एंटी डिप्रेसेंट्स पढ़ेंगे वो नॉर्मली इन तीनों के अवेलेबिलिटी को ही इंक्रीज़ करते हैं, एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच द पर्सन का जो मूड होता है वो स्टेबलाइज हो जाता है. दैट मीन्स दीज 3 आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट इन स्टेबलाइजिंग द मूड ऑफ एन इंडिविजुअल, राइट. एंड वी कैन रिसर्चर्स हैव शोन कि इन तीनों न्यूरोट्रांसमीटर में समवॉट लेस अवेलेबिलिटी होती है विदिन द ब्रेन. सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच कि the person is likely to develop or their mood is not regulated well enough, and that's why it goes on extremes. तो इसी को हम मोनोअमीन हाइपोथेसिस बोलते हैं, राइट. तो एंड ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि एंड देयर हैव बीन सम लाइक रिसर्चेस व्हिच हैव आल्सो सेड कि नहीं ये एक्सेस हो जाता है इसलिए भी डिप्रेशन हो जाता है. सो देयर इज काइंड ऑफ कन्फ्यूज्ड, लाइक देयर इज अ मिक्स्ड रिसर्च ऑन इट, देयर इज नथिंग कंक्लूसिव. सो आई विल जस्ट से कि आप
कुछ वो डिटर्मिन आई मीन डेफिनेट वे से आप ना लिखो इन द एग्ज़ाम. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हैज़ बीन डिस्कवर्ड इज़ कि सिर्फ न्यूरोकेमिकल फैक्टर्स नहीं होते हैं, कि ऐसा नहीं है कि ये इम्बैलेंस हुआ है तो डेफिनेटली डिप्रेशन होगा, लेकिन इसके साथ साथ बाकी फैक्टर्स भी आएंगे, जैसे आपके हार्मोन्स, आप कैसे आपका सोने का पैटर्न, आपके बायोलॉजिकल रिदम, वो सब भी आता है. नाउ abnormalities in hormones, they have kind of shown कि researchers have shown कि there is a link between hypothalamic HPA, hypothalamic pituitary adrenaline axis. ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि बेसिकली ये आपका जो, जैसे कि फॉर इंस्टेंस नॉर एपिनेफ्राइन एंड सेरोटोनिन. मैंने सेरोटोनिन आपको बता दिया कि वो मूड रेगुलेट करता है, बट नॉर एपिनेफ्राइन इज़ काइंड ऑफ लाइक योर स्ट्रेस हार्मोन. ठीक है, ये हार्मोन भी है, न्यूरोट्रांसमीटर भी है, एंड इट्स नेचुरली आपके बॉडी में प्रोड्यूस होता है. तो कभी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होएगा तो दिस इज़ लाइक इट विल द ब्रेन एंड द बॉडी विल असेस कि अच्छा स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ रहा है, एंड देन इट विल स्टार्ट रिलीजिंग नॉरएपिनेफ्राइन एज अ रिजल्ट ऑफ विच. और इससे क्या होता है कि इट इज़ एबल टू काइंड ऑफ रेगुलेट, प्रिपेयर द बॉडी फॉर द स्ट्रेस, राइट. एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है कि नॉरएपिनेफ्राइन रिलीज़ होता है इन हाइपोथैलेमस. अब इस दिस इन टर्न काइंड ऑफ रिलीजेस अनदर substance which is called, as you can see here, CRH from the hypothalamus, right. And then this further releases adrenaline, ACTH from pituitary, and this in turn kind of releases your cortisol from adrenaline. अगर याद नहीं आ रहा है, इतना सब कुछ याद नहीं आएगा एग्ज़ाम में, तो बस ये बोल देना कि देयर इज़ अ लिंक बिटवीन ऑल दीज थ्री. नॉरएपिनेफ्राइन को आप एक्सप्लेन कर देना, ये बस बता देना. ठीक है, तो नॉरएपिनेफ्राइन के वजह से ही, सॉरी आई विल जस्ट करेक्ट माई सेल्फ, नॉरएपिनेफ्राइन जब रिलीज़ होता है तो उसके वजह से ही आपका हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है, राइट. सो नॉरएपिनेफ्राइन एंड सेरोटोनिन जब रिलीज़ होता है देन इट काइंड ऑफ एक्टिवेट्स योर HPA एक्सिस. ठीक है, और इन सब के वजह से, because of all this increased cortisol activity, it kind of promotes a survival like response, and then फिर life threatening situation को cope करने में help करता है. तो but क्या होता है कि for example नॉरएपिनेफ्राइन it will increase your heart rate, है ना. तो अब ये अगर मान लीजिए एक्सेसिवली, अगर नॉरएपिनेफ्राइन वगैरह एक्सेसिवली सेक्रीट होगा बॉडी में, एंड बाकी ये CRH सॉरी एंड ACTH, तो क्या होता है कि इट लीड्स टू हाइपरटेंशन एंड हार्ट डिसीज़ एंड ओबेसिटी, विच इज़ व्हाट यू विल काइंड ऑफ नोटिस. ये सब एंजाइटी डिसऑर्डर्स एंड अगेन डिप्रेशन से लिंक्ड है. तो आई वुड से कि अगर एग्जाम भूल जाते हो तो ये फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट को डेफिनेटली लिख देना, क्योंकि आई नो तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. देन बायोलॉजिकल रिदम, बेसिकली इन दिस व्हाट दे आर सेइंग कि जिस टाइम पे आप सो रहे होते हैं, अगर आपका बॉडी इंटरनल बॉडी क्लॉक आपका सेटल्ड नहीं होगा, आपके स्लीपिंग पैटर्न्स ठीक नहीं होंगे, लेट से सो रहे हो, कम सो रहे हो, all of this will have a drastic impact on the way that you will be reacting to certain things in the day, also your appetite and your social interactions, right. So this is what it's kind of saying. That's the reason why, and also somewhere it's also said कि morning, like there has been a pioneering work by one of the Nobel Peace Prize winners, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, बट उन्होंने ये बोला कि sunlight plays a very very important role in activating our internal body clock, as a result of which we get up and we, that's why जब सुबह उठना वर्सेस रात को 12 बजे या दिन में 12 बजे उठना सो के उठने में बहुत डिफरेंस है. जब आप 12 बजे दिन में उठोगे तो यू आर लाइकली टू फील वेरी sluggish, but in the morning it's slightly different. It may not apply for everyone but majority. ठीक है, so sunlight, that's why according to that like a Nobel Peace Prize winner, he gave a lot of like focus on the internal body clock, how important it is. Then it is also said that a lot of people who do not it's normally seen that a person is likely to be depressed in winter or autumn, like
season, and then they become like normal. Okay, I have मैंने miss कर दिया, they become normal in spring and summer, right? So why is this so? I mean, again, researchers have shown कि seasonal variations होते हैं. वो अफेक्ट करता है. एंड देन which ऐसा क्या होता है कि there's another kind of depression, type of depression which is called as seasonal affective or seasonal depression disorder. इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू. तो ये सीजनली होता है, और इसको हम ट्रीट कर सकते हैं बाय गिविंग आर्टिफिशियल लाइट, राइट? तो so it's normally said that when people you may not experience it so much in the equator side, because I mean, this might not play a very important role, but this might play an important role. Let's say a person जिसमें आज let's say tomorrow I shift from India to England, so there has been sudden change. Okay, England में the amount of sunlight is less, so yeah, so there is a sudden change, so maybe it can trigger, right? Okay, now psychological causes. Okay, so I think this lecture has gone a little थोड़ा ज़्यादा हो गया है. I'm gonna pause here and I will do a part 2 where I will start from the psychological causes. If you're going to have any doubts, please write down the doubts somewhere, and we can always discuss it. I will do a doubt class very soon, so we can always discuss it there, right? Okay.